میرے گھر والے مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم پہلی بار میں اسکول جا رہا تھا تو الیاس صاحب کے ساتھ ہی میں پہلی بار اسکول گیا تھا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اسپیشل ریزن سے ایک بہترین جگہ پہ جا رہے ہیں۔ ریزن کیا ہے یہ ہم آپ کو لیٹر آن بتا دیں گے، پر ہاں جگہ کا نام ہم آپ کو ضرور بتا دیں گے۔ جگہ کا نام رئی ہے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے بٹ خوبصورت جگہ ہے۔ لیٹس موو ٹو رئی۔ رئی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 8 یا 9 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ پکنک اسپاٹ کے لیے جو چیزیں اہم ہوتی ہیں وہ سب اویلیبل ہیں وہاں پر۔ پانی ہے، ٹریز ہیں اینڈ پاسچرز بھی ہیں۔ البتہ جس ایریا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں پاسچرز تھوڑا سا کم ضرور ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیولپڈ ایریا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تھوڑا سا کام کیا گیا ہے وہاں سے تھوڑا اوپر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے بہت سے پاسچرز مل سکتے ہیں اینڈ آپ فیملیز کے ساتھ وہاں آ سکتے ہیں۔ رئی ریسنٹ ایئرز تک نان لوکلز کے لیے بالکل ان نون تھی۔ ڈورنگ کووڈ اس جگہ کو ایکسپلور کیا گیا اینڈ پیپل اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دس پلیس۔ 2021 میں ہم نے رئی پر ایک ویڈیو کی تھی جس پر ڈائریکٹر ٹورزم نے کمنٹ کر کے پوچھا تھا کہ ویئر از دس اسپاٹ لوکیٹڈ۔ دین لوکل اسٹارٹیڈ ریپلائنگ ٹو ہم اینڈ آسکنگ فردر ڈیولپمنٹ ان دس ایریا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ پلیس اسٹارٹیڈ اٹریکٹنگ ایچ اینڈ ایوری پرسن ود اٹس بیوٹی۔ تو آج اس خوبصورت جگہ پہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ایک مشفق استاد محترم محمد الیاس صاحب وانی جو گھٹگاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے اور ہم ان کے کچھ اسٹوڈنٹس مل کے ان کو الوداعی پارٹی دے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اس بندے کا ہم ویٹ کر رہے ہیں یہاں پر۔ یہ خان صاحب ہیں ہمارے، عارف صاحب خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ شکر اللہ کا۔ آپ ایک سوال کا جواب دیں۔ جی کب آپ اپنے فارم ہاؤس ہمیں بلا رہے ہیں؟ انشاءاللہ آپ سمجھیں کہ ودن 2 ویکس۔ ودن 2 ویکس؟ یہ سینٹنس میں پچھلے 1 سال سے سنتا آ رہا جی ہوں۔ نہیں بالکل، میں نے کچھ آج آن کیمرہ کچھ بتا دیں پلیز۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، 2 مہینے پہلے بھی آپ چلیے، لیکن تب آپ شاید بزی تھے، تو بس آج آپ بولیے، ڈیٹ آپ فکس کیجئے، انتظام ہمارا ہوگا۔ اچھا، تو پھر انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی بالکل انشاءاللہ باقی ساتھیوں کے ساتھ بھی۔ ڈن، اس بار ڈن ہے۔ یہ آن کیمرہ آپ بول رہے ہیں؟ بالکل آن کیمرہ آپ ریکارڈ کیجئے۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے دوست جتنے ہیں، آپ آئیے میرے فارم ہاؤس پہ، بیٹھیں گے، انجوائے کریں گے۔ 1-2 دن کا ٹور رکھیے، اپنا بزی شیڈول تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے، بالکل وی ول انجوائے۔ تھینک یو سو مچ۔ اس آٹو میں ہم نے ٹینٹ وغیرہ لایا تھا، لیکن یہ یہاں سے آگے جا نہیں سکتی ہے کیونکہ آگے راستہ بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ دیکھیے پتھر ہی پتھر ہیں اور چڑھائی بھی کافی ہے۔ میں نے بھی خود اپنی بائک وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، دیکھیے وہاں سے آگے میں لے نہیں پایا۔ تو گاڑی میں ابھی میں چڑھا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیے کس طرح عارف صاحب محنت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے میں تھوڑا سا پورا ان کو فریم میں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عارف صاحب کیا وجہ ہے، کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا مائک لیجیے آپ۔ عمر صاحب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کچھ۔ جن شخص کو آج ہم یہ پارٹی دے رہے ہیں وہ کسی تعریف اور تعارف کی محتاج نہیں۔ میں ایسا کہنا چاہوں گا کہ ایسی شخصیات جو ہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے
हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो मोहतरम इलियास साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके अंदर ईमानदारी, अमानतदारी, दयानतदारी कूट कूट के भरी हुई है। अगर हम पढ़ाने के सिलसिले में उनका तज़किरा करें तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई सानी होगा। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है, वैसा ही कुछ रवैया होता था मोहतरम इलियास साहब का अपने स्टूडेंट के साथ। तो आज ये हमारे लिए एजाज़ है, हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम आज उनको उनकी रिटायरमेंट पर ये पार्टी दे रहे हैं। मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो पीछे से आरिफ साहब भी, आरिफ साहब खान आ रहे हैं, उनसे भी कुछ सवालात करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करते हैं, चेंज करेंगे। आरिफ साहब प्लीज़ आ जाएं। पीछे से कुछ और साथी आ रहे हैं। आप भी मोहतरम इलियास साहब की मद्दाह में कुछ कहें। जी आप देख सकते हैं, कहना क्या, ये सब कुछ दिख रहा है कि ये इंतज़ाम जो आप देख रहे हैं ये हमारे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद इलियास साहब वानी के लिए हो रहा है, जो कि आधे एक घंटे में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो उसके बाद आप देखिए क्या क्या इंतज़ाम हमने उनके लिए रखा है। तो उम्मीद है कि उनको पसंद आएगा। जो यहाँ पर उनके शागिर्द कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? लगभग 40 से 50 उनके स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारा उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। और सबसे पहले किसने फैसला लिया था ये कि जी सबसे इसमें किसी ने पहल नहीं बल्कि सब ने पहल की थी। हमारे यहाँ से आप देख सकते हैं नासिर सर हैं, ये आरिफ सर हैं, सबने मिलजुल कर। जी बिल्कुल जनाब अपने टीचर के एजाज़ में बताएं कुछ सर। एक बहुत ही अच्छे टीचर हमारे इलियास साहब थे। अब उनको आज हम अलविदा करने जा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट से। अल्लाह ताला करे कि उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी उनके लिए अच्छी साबित हो। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। इलियास साहब के एजाज़ में जो है आज पार्टी मुनाक़द की है हमने यहाँ राई में। डिज़र्व करते थे वो इससे ज़्यादा, लेकिन हम ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी कर पाए इंशाल्लाह अच्छा होगा। प्रोग्राम थोड़ा बहुत कर लेंगे, 40-50 बंदे हैं हम, इंशाल्लाह अच्छा एजाज़ देंगे जिस हिसाब की उनकी सर्विसेज हैं इस डिपार्टमेंट में या फिर सोसाइटी में, वो इससे ज़्यादा डिज़र्व करते थे। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, मिल के तो देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। तो ये सारे इलियास साहब के स्टूडेंट्स हैं और सारे खुद भी टीचर। बोल गया
برونٹھ بے پور عاقب صاحب، الیاس صاحب نے آپ کو بھی پڑھایا ہے، آپ بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں الیاس صاحب کے، تو آج وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم نے یہاں پر پارٹی بھی رکھی ہے، تو آپ بھی کچھ اپنے ویوز دیں ان کی ٹیچنگ کے لیے، پلیز یہ لیجیے مائک آپ۔ شکریہ عمر۔ مجھے یاد آ رہا ہے 2001 کی بات ہے، میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو میں نے باضابطہ ان سے تلمذ اختیار کیا ہے، تو ایک شعر میں ان کے نظر کرنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر اقبال کا ہے۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ تو اس شعر کی عکاسی الیاس صاحب کی شخصیت میں بدرجہ اتم ملتی ہے۔ الیاس صاحب کی شخصیت کے متعلق میں یہ کہوں کہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ روح انسانی کی صنعت جو ہے، جس طرح ایک فیکٹری میں چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے، تو اسی طرح الیاس صاحب نے بھی اپنے ان 30 یا 35 سالہ جو ان کا یہ پیشہ رہا ہے، جس میں یہ بہت ہی مخلص، بہت ہی مشفق، اور سب سے بڑی جو صفت الیاس صاحب کی ہمیں معلوم ہے، جو ہم نے دیکھی ہے، وہ یہ تھی کہ یہ نہایت ہی ایماندار اور اپنے پیشے کے تعلق سے بہت ہی ڈیڈیکیٹ تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ الیاس صاحب نے جو اپنی خدمت یہاں پر انجام دی بحیثیت استاد، تو آپ دیکھیں گے خصوصاً اس اپنے علاقے میں کہ الیاس صاحب کو ہر ایک بہت ہی عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ کوئی بھی شاگرد، کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ جس کو محترم الیاس صاحب وانی نے پڑھایا ہو، تو کافی زیادہ عزت، ایون کہ میں یہ کہوں کہ یہ دو یار تھے، حفیظ صاحب اور الیاس صاحب، ان کی شخصیت بھی ہر ایک کے سامنے واضح ہے، دونوں بہت ہی نہایت ہی شریف النفس، نہایت ہی قابل انسان تھے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ ان کی آئندہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون دے، ان کی اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دکھائے، اور ان کی جو انہوں نے محنت کی ہے اس کا اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اس کا اجر دے۔ تو یہی ہمیں ہمارے پاس الفاظ ہے، کہنا تو انسان بہت کچھ چاہے گا، لیکن میں اپنے الفاظوں میں آخری بات یہی کہوں گا کہ الیاس صاحب ایک بہت ہی مشفق اور ایماندار استاد تھے۔ شکریہ عمر۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ یہاں پر ہمارے کچھ اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے، یہ انہیں بھی محترم الیاس صاحب کے ریلیٹڈ کچھ ویوز چاہیں گے ہم ان سے بھی۔ محترم الیاس صاحب کے بارے میں کچھ ویوز دیں آپ بھی پلیز۔ ہم الیاس صاحب کو اس وقت سے جانتے ہیں جب مجھے یاد آتا ہے کہ جب میرے گھر والے مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم پہلی بار میں اسکول جا رہا تھا تو الیاس صاحب کے ساتھ ہی میں پہلی بار اسکول گیا تھا۔ وہ ہمارے
रिलेशन में भी हैं। इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि जब पहली बार मैं जा रहा था स्कूल के लिए तो मेरे हाथ में पत्थर हुआ करता था, और उस पत्थर को इलियास साहब ने मेरे हाथ से लिया था और फिर वो अपने साथ मुझे पहली बार स्कूल लेके गए थे। तो आज उस वक़्त को तकरीबन 34 से 35 साल हो चुके होंगे, और इस पूरे 35 साल के सफ़र में हमने देखा कि इलियास साहब किस तरीके से उन्होंने अपना जो रोल था एज अ टीचर उन्होंने अदा किया है। एक आइडियल उस्ताद की अगर हमने देखना हो तो हम इलियास साहब की तरफ देखते हैं। एक आइडियल उस्ताद की जो किरदार होना चाहिए उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वो सिर्फ क्लासरूम के अंदर नहीं बल्कि क्लासरूम के बाहर भी एक उस्ताद का फ़र्ज़ जो है अदा करना चाहिए। वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए भी, हम भी उनके शागिर्द रह चुके हैं। न सिर्फ क्लासरूम के अंदर बल्कि क्लासरूम के बाहर भी हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। हम बहुत कुछ उनसे सीखे हुए हैं। हम चूँकि अब इसी शौबे से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो हमें बहुत सारे टीचर्स से मिलना होता है हमारा। लेकिन इलियास साहब का जो मुकाम है वो बहुत कम टीचर्स जो है वो हासिल कर पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा लास्ट पर कि अल्लाह ताला उनको अपनी जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे और वो खुशी से रिटायर होके यहाँ से जा रहे हैं। तो दुआ यही रहेगी कि वो अपने आगे जो भी वो काम करे उसमें फले फूले। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि उमर साहब ने अभी कहा कि उनका, इलियास साहब का हमारी ज़िंदगी के लिए मतलब बहुत अच्छा रोल रहा है हमारी ज़िंदगी निखारने में। मैं अपनी एक बात रखना चाहूँगा आपके सामने कि जब मैं पहली बार स्कूल में दाखिल हुआ था तो गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल हुआ, वहाँ पे मुझे लगभग 1 साल हुआ। वहाँ पे किसी ने कुछ पूछा नहीं वगैरह वगैरह, कुछ ऐसे नहीं। तो मेरे फादर साहब ने मुझे एग्ज़ाम दिया उन्होंने घर पे, तो मुझे कुछ आता जाता नहीं था। तो उन्होंने मुझे घर में एक छड़ी होती थी, उसने पिटाई शुरू कर दी मेरी उससे। फिर उसके बाद से मेरे मामा जी ने बोला कि उनको दर्सगाह में आप उनको दाखिल करवाए। तो वहाँ पे उस टाइम इलियास साहब वहाँ पे पढ़ाया करते थे। तो क्या हुआ, जब मैं पहली बार वहाँ पे दर्सगाह में दाखिल हुआ तो एक दो दिन होने के बाद इलियास साहब ने ये कहा कि वहाँ पे ड्रिल वगैरह कराते थे स्कूलों में। उन्होंने कहा कि इनका फादर साहब जो है पुलिस में है, तो ये अच्छे से जानते होंगे ड्रिल कैसे कराते हैं। उन्होंने मुझे सामने खड़ा किया तो वो ड्रिल करवा दी शुरू। तो मैंने उसको अच्छे से छोड़ा था, जैसा मुझको जो आता था तो वैसे मैंने उसको करा दिया अपना वो काम करके। इसी तरह से ऐसा वो पढ़ते गए, चलते गए आगे। तो 9th में एक बार उन्होंने मुझे पढ़ाया था, मुझे याद है अभी, एक लेसन उन्होंने पढ़ाया था हमें इंग्लिश में, क्या नाम है उसका, स्पार्क नेगलेक्टेड बर्न्स द हाउस। मुझे अभी भी याद है वो उन्होंने कैसे पढ़ाया था, मुझे अभी भी याद है वो चीज़ें। इवान और गैब्रियल होते थे उसमें, एक किरदार होते थे उसमें। ऐसा होता था कि उनका एक उस्ताद का जो रौब होता है आजकल जो पाया नहीं जाता है। आजकल उस्तादों का जो रौब है बच्चों के दिल में वो पाया नहीं जाता। लेकिन आज भी हम भी बहुत पहले 20-25 साल पहले हमने उनसे पढ़ा हुआ, उसके बाद भी जब हम उनको देखते हैं कहीं रास्ते में तो हमें थोड़ा सा महसूस हो जाता है कि नहीं, हमारे उस्ताद रहे हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं, जैसे दर्स वगैरह देना हो मस्जिदों में, वो अक्सर हमें कहा करते थे कि जब हम 12th में थे तो कुछ संगत वगैरह हमारी दूसरे हमारे दोस्तों के साथ हुआ करती थी जो फ़िलहाल मस्जिदों में नहीं जाते थे, नमाज में वगैरह करते थे। हमें अक्सर पकड़ते थे हमें जगह जगह, और यहाँ यही कहा करते थे, कश्मीरी में मिसाल देते थे वो, कि मैं उसका उर्दू में बताऊँगा कि अगर लोहार की दुकान में बैठोगे तो आपको वहाँ पे सिर्फ राख लग जाएगी और धुआं आपकी नाकों में चढ़ेगा। अगर अत्र की दुकान पे बैठोगे तो आपको खुशबू लगेगी। इसका मतलब ये था कि अगर आप अच्छी संगत में रहोगे तो आपको अच्छा ही आपको मिलेगा, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ कि एक उस्ताद कि उसने अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बनाने के लिए क्या क्या उन्हें कुर्बानियाँ दी होती है, ये अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ कि कैसे उनका शुक्रिया अदा कर सकें, कैसे उनका शुक्रिया अदा कर सकें कि उन्होंने उस वक़्त हमें उस गलत कम्युनिटी से निकाल कर अच्छे रुझान में वो क्या बोलते हैं
अच्छी कम्युनिटी में हमें बिठाया, अच्छे हमें रफ़ीक हमें मिले। वो तो अच्छे अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे। उन्हें हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए बहुत कुछ किया हमारे लिए। तो अल्लाह ताला हमें ये अब वो ये लास्ट वक्त उनका यहाँ पे हम आज उनको ये दे रहे हैं, ये पार्टी दे रहे हैं, उनकी अलविदाई पार्टी डिपार्टमेंट से। तो अल्लाह ताला उन्हें इस ज़िंदगी अगली वाली ज़िंदगी जो है वो बेहतर बनाए। रबना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने एक अज़ीज़ दोस्त, हमारे एक मुशफ़िक साथी, बचपन के साथी मोहम्मद इलियास वानी, जो अपनी मुलाजमत के आखिरी अयाम में हैं। 29 जून को वो बगदोश हो जाएंगे सरकारी मुलाजमत से। उस सिलसिले में यहाँ आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। इनके जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे भी वो स्टूडेंट्स हैं, उनने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, बहुत अच्छी दावत उनने पेश की और बड़े खुलूस के साथ पेश की। हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और मोहतरम मोहम्मद इलियास वानी साहब के बारे में कहेंगे कि एक इंतहाई मुखलिस दोस्त, एक इंतहाई मेहनती उस्ताद, एक इंतहाई ट्रेंड, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले और पढ़ाने के गुर जो है उनके पास एक दो नहीं कई गुर हैं, जिन्होंने न सिर्फ बच्चों को पढ़ाया है बल्कि असातिज़ा को भी ट्रेंड किया है, असातिज़ा को भी सिखाया है कि पढ़ाया कैसे जाता है। एक साथ हमने काम किया, प्राइवेट स्कूल में भी काम किया, सरकारी स्कूलों में भी काम किया। हाई स्कूल हांच में हम एक साथ रहे, हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में हम एक साथ रहे। तो हमने देखा कि बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट में उन्होंने किस तरह से अपना रोल अदा किया, किस अंदाज से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, सिखाया और उनकी तरबियत की। मैं तो यही महसूस करता हूँ कि इस किस्म के असातिज़ा ढूंढे से नहीं मिलते, बहुत कम खाल खाल नज़र आएंगे आपको आज इस किस्म के असातिज़ा। यकीनन एजुकेशन डिपार्टमेंट एक बेहतरीन उस्ताद से महरूम हो रहा है, लेकिन बहरहाल बहरहाल उस्ताद ही होता है। अब के बाद भी उनकी जहाँ ज़रूरत महसूस होगी, जब ज़रूरत महसूस होगी, वो हमेशा वो दस्ते ताउन बढ़ाने के लिए वो तैयार रहेंगे, हमें उम्मीद है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी ये जो आज के बाद वाली ज़िंदगी होगी, अल्लाह ताला उन्हें इसमें सलामत रखे, उन्हें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बेहतर अंदाज से गुजारने की उन्हें अल्लाह ताला तौफीक दे। और मैं कहूँगा कि कुछ अयाम उन्हें बिल्कुल मुख्तस कर लेने चाहिए अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है सर्विस के दौरान बच्चों के साथ बैठने का। तो उन्हें वो मौका दिया जाना चाहिए अब, और उसके बाद हमें उम्मीद है कि वो फिर अपने तजुर्बात का सही इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान अता फ़रमाए, दुनिया और आखिरत उनकी संवार दे, हमारी भी, हम सब की और तमाम नाजरीन की भी अल्लाह ताला दुनिया भी और आखिरत भी संवार दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेशा है और ये पैगम्बराना पेशा है, रसूलों का पेशा है कि लोगों को पढ़ाना, लोगों को सिखाना, लोगों की तरबियत करना। और इसमें हमें कितना मोहतात रहने की ज़रूरत है हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और हमें अपने पेशे की कदर करनी है, हमने अपने पेशे को कमतर नहीं समझना। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि 10वीं जमात में एक सबक है इबरत, उसमें 3 किरदार हैं, एक पटवारी है, एक इंस्पेक्टर है और एक टीचर है। टीचर को उसमें लगता है कि पटवारी और इंस्पेक्टर की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है, उनके यहाँ चहल पहल है, उनके यहाँ मुर्ग मसल्लम आते हैं, उनके यहाँ सब्ज़ी तरकारी आती है, उनके यहाँ और बाकी चीज़ें आती हैं जैसा हम देखते हैं। लेकिन ये पंडित चंद्रधर उनका नाम होता है, ये अपने पेशे से थोड़ा सा नाला होते हैं कि
मैं बेचारा मास्टर। उसके बाद ये लोग एक प्लान करते हैं कि हम अयोध्या जाएं वहाँ की यात्रा के लिए। मास्टर जी को भी कहते हैं कि आप भी चलिए हमारे साथ। मास्टर जी कहते हैं कि मेरे पास सरमाया नहीं है उतना, मैं नहीं चल सकता। लेकिन ये दोनों साहिबैन कहते हैं कि हम आपका खर्च उठा लेंगे। उसके बाद वो मान जाते हैं, चल दिए वो वहाँ से। रास्ते में दारोगा के साथ और उस पटवारी के साथ उनकी हालत खराब कर देते हैं, जिनकी हालत उन्होंने पहले खराब। इंस्पेक्टर ने एक शख्स को मेले में ऐसे ही मारा होता है और पटवारी ने भी कुछ ऐसा ही कुछ किया है अपने क्लाइंट के साथ, तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। उसके बाद बचते हैं ये टीचर उस्ताद चंद्रधर। इनको अपना शागिर्द, वो शागिर्द जिसको उन्होंने सिर्फ 2 माह की तालीम दी थी, यानी वो किसी वजह से उसके यहाँ उस इलाके में उनकी पोस्टिंग हुई थी उनके वालिद की, तो वहाँ पर वो पढ़ने के लिए आए थे। तो 2 महीने के लिए उसने वहाँ पर एडमिशन लिया। कृपा शंकर उसका नाम होता है। तो ये कृपा शंकर अपने इस उस्ताद को पहचानता है। 2 जो साहिबैन हैं, एक पटवारी और एक दारोगा, जो बड़े जिनका दबदबा था, रोब था, उनके यहाँ सब उनको सलामी सुबह शाम जो है उनके यहाँ होती थी। लेकिन ये चंद्रधर जो अपने पेशे से क्या थे, ये बेजार थे, बेचारों मास्टर। तो वो शागिर्द ने इस अपने उस्ताद को पहचाना, तो कहा कि आप जो है मेरे उस्ताद रह चुके हैं। फिर वो सारा मामला सुनाते हैं चंद्रधर। फिर उनको अपने साथ लेके जाते हैं अपने घर, अपनी कोठी में खाना खिलाते हैं और वहाँ पर बिस्तर वगैरह सारा इंतज़ाम करके फिर उनको सुला देते हैं। फिर उसके बाद रात भर पंडित चंद्रधर के जहन में ये सारा वाक़ा, दरोगा के साथ क्या हुआ, उसके पटवारी के साथ क्या हुआ और मेरे साथ, जब उसको ये सारी चीज़ें सामने आई तब उसको अपने पेशे का एहसास हुआ कि हमारा ये पेशा कितना अजीम पेशा है, कि मेरा पढ़ाया हुआ शागिर्द जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन आज इसने मुझे पहचाना और हमारी खिदमत की, और जो उनके साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं हुआ। तब उसको एहसास हुआ कि मेरा ये जो पेशा है ये कोई आम पेशा नहीं है। तो मैंने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखी कि बोइस्तु मुअल्लिमन, हम में भी यहाँ सारे उस्ताद हैं। हमने सोचना है अपने इस पेशे के बारे में, क्या कहीं हम इसके साथ कोई इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे पास बच्चे होते हैं, वो किसी की अमानत होते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को अमानत के तौर पर हमारे सुपुर्द करते हैं, क्या हम कहीं उनके साथ खयानत तो नहीं करते हैं। ये हमें सोचना चाहिए। जो भी यहाँ गवर्नमेंट टीचर हो या प्राइवेट टीचर हो, इस बारे में सोचना चाहिए इस अमानत के साथ हम क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे मुशफिक उस्ताद अपने इस फ़राइज़ मनसबी से सबक दोष हो रहे हैं, मैं गवाही देता हूँ कि इन्होंने अपने इस फ़र्ज़ के साथ इंसाफ किया। इन्होंने वैसे बच्चे को तालीम दी जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे को पालती है, वैसे इन्होंने, हमने भी इनके पास पढ़ा है और बड़े शफीक अंदाज में इन्होंने जो है हमारी तरबियत की है। बहुत कम वक्त हम इनके पास रहे, लेकिन यादगार रहा वो वक्त। इनकी दयानतदारी, इनकी अमानतदारी, इनकी ईमानदारी, उसको वो सराहने के काबिल है। हर एक शख्स उसकी गवाही देगा। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए, बहुत मुकर्रर अभी हैं, उनको कुछ कहना है, ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर कायम और दायम रखे, और ये जो पोस्ट रिटायरमेंट जो इनकी ज़िंदगी, अल्लाह ताला उसको खुशगवार बनाए और इनकी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा ये वक्त उनको दे पाएँ, क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं। और हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे, और जो कुछ ज़िम्मेदारी इसके बाद इनके सुपुर्द होगी, अल्लाह ताला से दुआ है कि उसको ये बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या बहुत बहुत आरिफ फलाही साहब, जैसा कि इन्होंने कहा, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि शोबा तालीम के अलावा बाकी शोबों से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैं दावत देता हूँ डॉक्टर वकास अहमद को कि वो यहाँ पर आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। डॉक्टर वकास अहमद साहब।
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ایک خوشی کا مقام ہے، خوشی کا دن ہے۔ ہمارے استاد محترم محمد الیاس صاحب وانی، جنہوں نے اپنی جو پیشے کے اعتبار سے ایک ملازم یہ استاد کا ایک فریضہ انجام دیا، اور آج ان کو رول کے حساب سے آج وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن ہماری یہ دعا رہے گی کہ وہ آگے بھی اس پیشے کو جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ جو پیشہ ہے ایک ایسا پیشہ ہے کہ اس کو انسان آخری سانس تک، آخری لمحے تک نبھا سکتا ہے۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ ہمارے اوپر جس طرح سے انہوں نے تربیت کی بچپن سے لے کر، جیسے کہ آپ نے سنا، اپنے حکیمانہ انداز سے انہوں نے ہمیں بچپن سے سکھایا، انگلی پر پکڑ کے بھی سکھایا، الگ الگ انداز سے سکھایا، نرم لہجے سے بھی سکھایا اور تند لہجے سے بھی سکھایا۔ جہاں پر جس چیز کی ضرورت تھی انہوں نے اپنے اپنے انداز سے ہمیں سیدھا کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم آج جس مقام پر ہیں، یہ سب ہمارے ان تمام استاد جو بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ محترم الیاس صاحب ہیں، چاہے محترم عبدالحفیظ صاحب ہیں، یا غلام قادر وانی صاحب ہیں، یا محترم قیوم صاحب ہیں، یا جو یہاں موجود بھی نہیں ہیں، انہی کی محنت سے، انہی کی دلی لگن سے، انہی کی محنت سے آج جس مقام پر ہم پہنچے ہیں، یہ سب ان کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جزا نہ صرف اس دنیا میں دے بلکہ آخرت میں بھی ان کی پوری جزا دے، میری یہ دلی دعا ہے۔ باقی میری یہ تمنا ہے، میری یہ گزارش ہے کہ آگے بھی جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، یہ ہمیں آگے بھی گائیڈ کرتے رہیں گے، اپنے اس پیشے کو آگے بھی جاری رکھیں گے، جس انداز سے بھی چاہے ہمیں گائیڈ کرتے رہیں گے، اور سب کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ان کے ہدایات کے مطابق آگے بھی چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انہیں آگے جو زندگی ہے اس میں بھی کامیاب اور کامران رکھے، اور اپنے اہل و عیال میں بھی شانتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا، تو میں 2-4 کپلٹ سے پہلے یہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت چھالے تھے اس کے پیروں پر، ضرور اصولوں پہ چلا ہوگا۔ بہت چھالے تھے اس کے پیروں پر، ضرور اصولوں پہ چلا ہوگا۔ تم اگر چاہو تو حالات بدل سکتے ہیں، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے ہیں۔ تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ان کا، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مکرم محترم الیاس صاحب وانی، محترم عبدالحفیظ صاحب فرقان آبادی، محترم قیوم صاحب، غلام قادر وانی صاحب، یہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ اساتذہ میرے اور کچھ ساتھی، السلام علیکم، آداب۔ میں مرحوم اقبال کے ایک شعر سے اپنی جو محترم الیاس صاحب کے تئیں ہم نے یہاں پر
1 या 2 मिनट बोलना होगा, और मेरे जो आने वाले बात के भी स्पीकर हो वो भी वक्त का ख्याल रखें। मरहूम इकबाल ने बहुत बढ़िया बात कही है और मैं इनकी नज़र वो शेयर करता हूँ कि शेख मकतब है एक इमारत घर, शेख मकतब है एक इमारत घर जिसकी सनत है रूह इंसानी। और आज आप देख रहे हैं कि ये सनत यहाँ पर तैयार हो चुकी है, क्योंकि इनकी मोहब्बत, इनकी शफ़क़त, इनका वो नेक सलूक हर एक बच्चे के साथ, तो वो इस चीज़ को यहाँ पर ज़ाहिर करता है कि इनके महकमे के अलावा, जैसे यहाँ पर हेल्थ से, रेवेन्यू से या आरडीडी या दूसरे महकमों से आना, इस चीज़ का गम्माज़ है कि मोहतरम इलियास साहब वानी ने जिस शख्स को भी पढ़ाया है उस पे अपने अक्स डाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेरे दोस्त या मेरे कुछ असातिज़ा हैं जो इसी पेशे से हैं, तो हम यहाँ पर एक लाइन देख रहे हैं वहाँ कुयुम साहब शनाली से लेकर यहाँ अलहाज कादिर साहब तक, तो एक एहतराम और एक मोहब्बत जो इन असातिज़ा के तई है, या इनके अलावा भी हमारे कुछ असातिज़ा हैं जो इनसे हमें बेहद मोहब्बत और इखलास के साथ हम इनसे मोहब्बत करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि आज भी हमारे यहाँ हमारे भाई, हमारे घर में, हमारे रिलेशंस में, हमारे दोस्त, अजीज़ व अकारिब, वो जो है वो टीचर या असातिज़ा का जो मनसब है उसको अदा कर रहे हैं। लेकिन क्या बात है कि इनकी मोहब्बत जो है हर एक के दिल में, बगैर ज़ात, रंग, नस्ल, हर एक को पार करके आप देखेंगे, जब पूछेंगे तो वो इलियास साहब, हफीज़ साहब, कुयूम साहब और यहाँ पर हाजी मोहतरम गुलाम कादिर वानी साहब के मुतल्लिक ये बात कहने से गरेज नहीं करेगा कि इनकी शफ़क़त, इनकी मोहब्बत, अगरचे कि बिलवास्ता मुझे तालीम हासिल करने का बहुत कम अरसा मिला है। मुझे याद है कि वही अरसा शायद शहबाज साहब को मिला होगा। ये बात 2001 की है कि कुछ हफ्ते या 2 हफ्ते मसूदा मैडम हमें पढ़ाया करती थी जोग्राफी और हिस्ट्री सिविक्स, तो वो छुट्टी पे चली गई थी, तो उन दिनों मेरा डायरेक्ट इसके अलावा कहीं इनसे वो राब्ता नहीं रहा है पढ़ाने का। लेकिन जिस ईमानदारी, जिस मोहब्बत और जिस शफ़क़त के साथ इलियास साहब या हफीज़ साहब को मैंने नोट किया है, उनमें एक सिफत मैं कहूँगा, क्योंकि उस असातिज़ा महकमे से यहाँ पर इस ताल्लुक़ से है सब, तो एक बहुत बड़ी सिफत जो इनके अंदर बदर्जे अतम मौजूद थी कि ये हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी का भी हो, उसको उस मोहब्बत और उस शफ़क़त की निगाह से देखते थे और उसी शफ़क़त और मोहब्बत की निगाह से उसको भी पढ़ाते थे जिसको ये मोहतरम हफीज़ साहब या इलियास साहब। तो ये मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है, क्योंकि मतलब हमारी सोसाइटी में हमारे आजकल इस अगरचे हम इस महकमे से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन एक चीज़ को जो नोट किया जाता है कि असातिज़ा के मुतालिक वो मोहब्बत, वो शफ़क़त, वो रवैया आजकल के शागिर्दों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसकी एक बुनियादी वजह यह भी होती है कि असातिज़ा जो है वो एक वो एतदाल जो है वो कायम नहीं करते हैं, और एतदाल जो इंसान कायम करता है, तो आप देखते हैं पिछले साल आपने हफीज़ साहब की रिटायरमेंट देखी, इस साल आप इलियास साहब की रिटायरमेंट देखते हैं, तो ये इनका इखलास था, इनकी मोहब्बत थी, इनकी शराफत थी। और सबसे पहली चीज़, इज़्ज़त देने वाला जो है, इज़्ज़त लेने वाला भी और देने वाला जो है अल्लाह की ज़ात है। जब आप खालिस अल्लाह के लिए किसी चीज़ को करते हैं और आप ये रखते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह ताला फिर गैब के ज़रिए से, दूसरे वसाइल से आपकी इज़्ज़त और आपकी तौक़ीर इस दुनिया में कराता है। तो मैं ये कहूँगा कि इलियास साहब के मुतालिक मैं एक बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इस इलियास साहब जो है ये उसूल पसंद इंसान है। इनका जो सबसे बड़ी चीज़ जो है, आप हम देखते हैं कि जैसे मेरे शायद भाई आरिफ साहब ने या डॉक्टर विकास साहब ने, किसी ने कहा था या सुहेल साहब ने कहा था, मस्जिदों या दूसरे अमूर में भी आप देखते हैं कि इलियास साहब की शख्सियत जो है कि वंस कोई डिसीजन लेना है, करना है कोई काम, तो ये उसको सरअंजाम देते हैं। तो इनकी ये सिफत जो है वो इसलिए होती है क्योंकि सिर्फ ताल्लुक़ बिल्लाह है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में, उसके अलावा किसी और की मोहब्बत इन्होंने दिल में जगह नहीं दी है। तभी ये इन बुतों को तोड़कर सिर्फ अल्लाह की उस मोहब्बत को अपने दिल में जो है जागज़ी करते हैं।
तो हम में से हर एक को चाहिए, और मैं ये दुआ भी करूँगा अल्लाह ताला से कि इनकी जो औलाद है, अल्लाह ताला जो दूसरी मतलब बच्चों ने जो हमने इनसे पढ़ा है तो कुछ किया है, तो अल्लाह ताला इनकी जो औलाद है, इनके जो बच्चे हैं, उनको भी अल्लाह ताला मतलब आला से आला मकाम इस दुनिया में अता करे। और मोहतरम इलियास साहब के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ने जो इनको इज़्ज़त यहाँ पर बख्शी है, इसको कल क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें दिखाए कि इसका इनको एक अच्छा अजर मिलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि वक्त तेज़ी से गुज़रता जा रहा है और वक्त कभी किसी के हाथ आया भी नहीं। इस वक्त उठने से पहले मुझे 1 मिनट का ही मौका दिया गया है, लेकिन जिस शख्सियत के बारे में लब कुशाई करने की जसारत करने जा रहा हूँ, हमारी ज़िंदगी, हमारा बचपन इन्हीं के नज़रों के सामने परवान चढ़ा हुआ है। मुझे आज भी याद है जब हम क्लास 6 में पढ़ते थे, और मतलब जैसे कल की बात हो, क्लास 6 में पढ़ते थे, तो मोहतरम इलियास साहब जब हमारी क्लास में इस रुखसती लेने के लिए आए थे कि मैं इस दर्सगाह को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी अब गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, ये 1991 की बात है। मतलब आप सोचें, लगभग इस वक्त 32-33 साल हो गए, लेकिन वक्त इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि वक्त हाथ आता नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। ये इस फरीज़े को अंजाम दे के अब इस से सबकदोश हो रहे हैं। अब हमारे लिए कुछ नुकूश छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से नहीं हूँ, मैं क्लरिकल इससे कैडर से आता हूँ, लेकिन बाज़ अवक़ात कहीं मौका मिलता है बात करने का स्कूलों में या कहीं मीटिंग वगैरह में, तो वहाँ पे अक्सर कहा जाता है आप भी कुछ बोलिए। हायर अथॉरिटीज़ के साथ हमारा रहता है तालीम के रिलेटेड, तालीम का क्या निज़ाम चल रहा है, किस कदर चल रहा है, तो हम बात करते रहते हैं। तो मैं अक्सर वहाँ पर भी, डोडा में मैंने काफ़ी काम किया, तो घाट में अभी थोड़ा ही टाइम हो गया, तो अक्सर वहाँ पे बोलता रहता हूँ कि उसातिज़ा कराम जो है, जैसे ये बोलते हैं, ये जो है ये क्या कहते हैं, कौम के मेमार होते हैं, कौम को यही बनाते हैं। हमारे सामने जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हमारे सामने ऐसे उसातिज़ा किराम हैं, हमें किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ से इतने सारे हमें आते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, लेकिन हमारे सामने जब ऐसे आइडियल उसातिज़ा किराम हों, तो हमें इससे सबक लेना चाहिए कि हमें अपने प्रोफेशन को, अपनी जॉब को किस कदर चलाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल इज़्ज़त मेरे मोहतरम दोस्त मोहम्मद इलियास वानी साहब, मोहतरम हाज गुलाम कदर वानी साहब, अब्दुल क़य्यूम नाली साहब, और मेरे दोस्त श्री बुदीराम जी और दीगर मेरे तमाम ही यहाँ पे तलबा हैं, शागिर्द हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। पहली चीज़ तो ये मुझे खुशी हुई, चलो हमारे बरादरान वतन में से हमारे बुदीराम जी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, इससे कुछ और ज़्यादा ये हमारी मस्जिद जो है बड़ी अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। तो इस वक्त मोहतरम मोहम्मद इलियास वानी साहब, जिनके बारे में आप जानते हैं कि आप सबसे ज़्यादा मैं इनके करीब रहा हूँ, हम पढ़े भी एक साथ, रॉयल एकेडमी में काम भी एक साथ किया। फिर जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई सरकारी टीचर के हिसाब से वहाँ धान हाई स्कूल हांच में, तो वहाँ भी हम एक साथ रहे।
अल्लाह ताला ने बचपन ही से हमको साथ साथ रखा। अल्लाह से दुआ है कि आपके बाद भी हम साथ साथ ही रहें। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। शायद आपके लिए नई बात हो कि नमाज भी मैंने इनसे ही सीखी है। मैं नमाज कम ही पढ़ता था, सिर्फ माह रमज़ान में। जब इनकी सोहबत मिली तो इन्होंने मुझे साथ रखा। हम डोडा में हमने वहाँ रूम किया था जब हम पढ़ते थे 11th में वहाँ पे। तो इनकी सोहबत से मैं फिर पक्का नमाजी बन गया। तो इनके बड़े एहसानात हैं। इनके बारे में मैं यही कहूँगा मुख्तसरन कि वो जो कहते हैं ना, एक दरख्त को पहचाना जाता है उसके फल से, तो इनका फल आपके सामने है। अगर आपने पहचानना है इनको तो आपको पहचाने लोग। जब आपको देखेंगे वो खुद समझ जाएंगे कि ये पेड़ कैसा है जिसने हमें इस किस्म के फल दिए हैं। लिहाजा पहली और मैं कहता हूँ आखिरी बात भी यही है कि अगर इनको पहचानना हो तो इनके फल को पहचानो। दूसरी बात करूँगा, चूँकि अब मुझे आपने खड़ा किया है कि मैं भी कुछ एक दो अल्फाज कहूँ, तो एक और बात भी मैं कहूँगा इस मौके पे, वो आप सब के लिए और हम सब के लिए, कि असल में जो उस्ताद का काम है सिर्फ बताना या समझाना नहीं है। बताने समझाने से ज़्यादा दिखाना जो है उस्ताद की जिम्मेदारी है। आप जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से बच्चों के सामने अपनी ज़िंदगी रखते हैं, आप जब अपने बोलने का तरीका, आप किस अंदाज से बोलते हैं, बच्चे बराबर आपकी कॉपी कर लेंगे। अगर आप बच्चों के साथ आप करके बात करेंगे, वो भी आप ही बोलेंगे। आप तुम करके बात करो, वो भी तुम ही बोलेंगे। आप बच्चों के सामने कोई भी गलत हरकत, किसी किस्म की गलत आदत, जैसे स्मोकिंग वगैरह है जो कि एक बड़ी गंदी आदत है, शायद आप में से कोई भी इसका नहीं है, लेकिन अगर कोई हो तो इससे ज़रूर परहेज़ करें आप। ये एक अच्छी आदत नहीं है, कोई हेल्दी चीज़ नहीं है, इंतहाई गंदी चीज़ है ये। तो इससे आप बचेंगे। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चे को कि बेटा सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और फिर अगर आप पीते हों फिर आप नसीहत करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो इसी अंदाज से गोया आपने वही काम करना है जो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आप बेहतर समझते हैं। तो इलियास साहब ने ऐसा किया, करके दिखाया। इस किस्म की चीज़ को इन्होंने हमारे सामने रखा, आपके सामने रखा। तीसरी चीज़ जो इनकी ज़िंदगी में बड़ी अहम है, जिसकी तरफ कुछ लोगों ने यहाँ इशारा किया भी, कि ये उसूलों से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये नहीं देखते कि कौन नाराज़ होता है, कौन खुश होता है। उसूल की बात इनके सामने है। हम कभी उसमें कर लेते हैं प्लस माइनस कि चलो जी वो भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, कोशिश करते हैं आपस में मिलाने की, लेकिन इलियास साहब इस मामले में तो टोक है, कोई कुछ भी। और चौथी बात इनके बारे में जो मैं कहूँगा कि ऑनेस्टी की ये बेहतरीन मिसाल है। ये एक एक पैसे का हिसाब, 50 पैसे का हिसाब, 1 रुपये का हिसाब, ये न किसी का खाएंगे न खाने देंगे। खुसूसन जिस चीज़ की अमानत इनके सुपुर्द की जाएगी, वो स्कूल की हो, मस्जिद की हो, मदरसे की हो, किसी चीज़ की अमानत हो, ये उसमें इंतहाई स्ट्रिक्ट हैं। और 1 पैसे की वो आप कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने इनको बहुत करीब से देखा है इस मामले में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको अल्लाह ताला ने नवाजा है इन चीज़ों से। अच्छा नहीं रहता है सामने, मुँह के सामने तारीफ़ करना, ये हम पीठ के पीछे बोलते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है इन पर। इनको इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये चीज़ें दी हैं, ये सिफ़ात इनके अंदर हैं। तो इस मौके पे मैं आप सब का बड़ा ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके अंदर ये चीज़, ये हिस्स मौजूद है कि आप अपने असातिज़ा की कदर करते हैं, आप अपने उस्तादों का हक़ पहचानते हैं। खैर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, इनके लिए वो बात इस वक्त मुर्मिला साहब के लिए, कभी शाख सब्ज़ो बर्ग पर, कभी गुंजो गुलोहार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक है फसले बहार पर। ये फसले बहार जो है इस पर इनका हक है, ये आपके उस्ताद हैं। लिहाजा आपने अपनी इस बहार में, अपनी खुशी में, अपनी इसमें इनको बुलाया, और उनके साथ हमें भी अगर आपने मददू किया तो हम इसके लिए भी आपके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला आपकी
इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। और यही चीज़ है, मैं बार बार अक्सर कहा करता हूँ, आप मुझे सुनते भी हैं, मुझे इस वक्त ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप देखिए, आप इस वक्त एक कौम को, आप इस मुल्क के जो अभी शेख मकतब है, एक इमारत घर, एक इमारत बनाने वाले हैं आप, मेमार हैं आप, इस कौम के मेमार हैं। आपने इस कौम को तामीर करना है। तो इस तामीर करने के सिलसिले में जब तक ना आपके दिल में तमाम लोगों की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हो, एक एक बच्चे की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हो, वो किसी ज़ात किसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, कोई भी हो। डॉक्टर इकबाल ने यही बात कही है, बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही है, मोहब्बत ही से पाई है शिफा, बीमार कौमों ने किया है अपने बख्ते खुफ्ता को बेदार कौमों ने। अगर आपने कौम को बेदार करना है, कौम की तामीर करनी है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ और सबसे अहम चीज़ मोहब्बत है। आप मोहब्बत को आम करें, बस यही चीज़ जो है आप कौम को बेदार कर सकते हैं, कौम की तामीर कर सकते हैं। तो मैं फिर एक बार आखिर में आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अता फरमाए, ईमान कामिल अता फरमाए, सीधे रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे कायम रखे और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के साथ साथ आपको, हम सब को अपनी आखिरत भी बनाने की तौफीक अता फरमाए। पिछली बार मैंने कहा था, हाँ खुतबे में आपने सुना था, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चले थे, जब निकाला गया उन्हें, अच्छा मैं अपने रब की तरफ जाऊँगा। अगर इनको भी निकाला गया है, इनके लिए भी ये बेहतरीन पैगाम है कि मैं अब जा रहा हूँ, यानी इसका सरकारी मुलाजमत से दोष होकर जा रहा हूँ, मगर कहाँ जा रहा हूँ? कहीं नहीं जा रहा हूँ। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, वो मुझे बता देगा मेरे लिए क्या काम है। अल्लाह ताला मुझसे भी, आपसे भी, हर एक से अपना काम ले और हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूलहु व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। मुकर्रम शेख अब्दुल हफीज़ साहब, मोहतरम व मुकर्रम कुय्युम शनाली साहब, अलहाज गुलाम कदीर वानी साहब, श्री बुधिराम जी, हम सफ़र साथियों व दीगर डिपार्टमेंट से आए हुए अज़ीज़ शागिर्दों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अब आपने मेरी इतनी तारीफ़ें की हैं कि मैं इस करम के कहाँ था काबिल। तो नात पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, ये सब आप लोगों की वो ज़रा नवाजी है कि आपने मुझे ये अनड्यू रिगार्ड आप मुझे दे रहे हैं। मैं अपने गांव की एक बात बताता हूँ कि एक बुज़ुर्ग, नाम नहीं लूँगा, जब भी किसी बच्ची की विदाई होती थी, रुखसती होती थी शादी पे, तो वो अक्सर रोया करती थी, कोई भी लड़की हो। तो मेरा भी वही हाल होता था जब भी कोई ये फेयरवेल पार्टी, रिटायरमेंट या ट्रांसफ़र, तो लेकिन आपने मुझे थोड़ा अर्लियर, आपने मुझे उसके लिए तैयार किया। बहरहाल मैं अल्फाज नहीं इस वक्त मिल नहीं रहे हैं कि मैं आपके सामने कुछ अपने जज्बात का इजहार करूं।
बहरहाल ये एक इंसान की बहुत बड़ी खूबी होती है, वन ऑफ द बिगेस्ट वर्च्यूज ऑफ पर्सन, कि वो अपने किसी साथी की खुशी में खुश होते हैं और उसकी जब उसे कोई गम होता है तो वो उसके साथ गम में भी शरीक होते हैं। आपका ये इजहार अकीदत, आपका ये रिगार्ड, ये नाकाबिले फरामोश रहेगा। मेरी ज़िंदगी का एक बाब ये भी बन गया। मैंने अपने इस तालीमी सफ़र के दौरान क्या कुछ किया, मोहतरम हफीज़ साहब ने अभी जिक्र भी किया उसका, और मैं इनसे वो जिक्र कर रहा था, मुझे कुछ ऐसा ही याद है कि सर सैयद अहमद खान, उनसे पूछा गया कि अल्लाह ताला से अगर आपसे पूछे कि आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो उन्होंने कहा था मैं अल्लाह ताला से कहूँगा कि मैंने मौलाना हाली से मुसद्दस हाली लिखवाई। शहबाज साहब इसकी, तो अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछे कि आपने अपने इस तालीमी सफ़र में क्या किया है, तो मैं ये वीडियो अल्लाह ताला के सामने रखूँगा। क्या जो हमारे साथी यहाँ, जो हमारे अजीज़ तलबा यहाँ आ नहीं सके, तो उनको मैं पेश करूँगा। आपने तो मेरी सिर्फ तारीफ़ें ही की हैं, लेकिन मेरी खामियां आपने मुझे नहीं बताई। मेरी खामियां आपने मुझे नहीं बताई, वो मैं ही बता देता हूँ कि मैं ज़रा खुश कलामी से आपके साथ पेश आता था। अभी जिक्र भी किया अज़हर साहब ने, तो मुझे याद है एक, वो आज हमारे ही पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन है नाम जाहिर नहीं करूँगा, लेकिन मैंने उसको कुछ इंडिसिप्लिन उसने किया, क्या किया, तो मैंने उसको पीटा गेट पर ही, स्कूल के गेट पर उसको पीटा। तो आज भी मुझे आज भी उसकी वो मार जो है, कुछ यहाँ कुछ उसकी चुभन आज भी महसूस होती है मुझे अपने आप। लेकिन मैंने वो बहरहाल फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी, इसीलिए मैं स्कूल में, हत्ता कि आप ये मान लीजिए कि मैं आज भी स्कूल में वैसे बात करता हूँ जैसे मैंने रिटायर होना ही नहीं है। मैंने अब कल 9th में एक एडमिशन के लिए आ रहा था, मैंने प्राइवेट एडमिशन लेनी है। मैंने उसे कहा आज आपकी एडमिशन नहीं होगी, आप एग्ज़ाम के दिन आएंगे, मार्च में आना आप अगले साल, तो प्राइवेट आपको एग्ज़ाम ले लेंगे हम। हालांकि मैंने साथ में, मुझे फिर याद आ गया, मैंने कहा मैं सिर्फ 7 दिन इस स्कूल में हूँ। तो बहरहाल, और दूसरा ऐब जो मुझ में था कि वो शिणमन कहीं से गुलकाक कहीं से नहीं कहता, तो इस तरह से मैं उनके साथ वो हंसी मजाक का भी एक दौर चलता था। यस्त में नहीं यथासन ये कि है बकरमन टीज यस्त में नहीं यथासन के, लेकिन आकोस बनियो बस गरती है मन कहीं गुल कहीं से बे कहता। बहरहाल, तो ये लम्हे जो हैं ये नाकाबिले फरामोश हैं। मैं अपने कितना इस फील्ड में कामयाब हुआ हूँ, आपने तो मुझे कामयाब करार दिया, आपकी सर्टिफिकेट, उसका शुक्रिया, आपने मुझे सर्टिफिकेट दिया, लेकिन असली सर्टिफिकेट जो मुझे वहाँ पास कराए, तो अल्लाह के दरबार में मुझे वो सर्टिफिकेट दे, वो अल्लाह ताला से ही दुआ करता हूँ कि मैंने अपने शागिर्दों का हक अदा नहीं किया है। ये मैं आज भी अपना कसूर मानता हूँ कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मैं जब हांच में था, हफीज़ साहब को मैंने खुद ही कहा, मैंने कहा कहीं सिर्फ हांच में आपने ज्वाइन करना है। खुद ही हमने बशीर साहब से, मरहूम बशीर साहब से, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, मैंने कहा आप हांच के लिए ट्रांसफ़र करेंगे, एडजस्टमेंट करा लो। ये भी हांच में आए हम। मैं एक अब भी बीच में सुनाता हूँ, मैंने इनको कहा भाई सुबह मैंने रोटियां नहीं पकानी है, ये आटा जो है नाखूनों में फंसता है, दिन भर नहीं निकलता है, लिहाजा मैं रोटी, बाकी सब कुछ बनाऊंगा लेकिन रोटी नहीं पकाऊंगा। हफीज़ साहब फिर वो मांडीश ना मनन योज मांडी पकावन पता, तो हम उसी के साथ चाय वगैरह पी लेते थे। इकट्ठा डेरा था।
تو اس طرح سے ہم نے زندگی کے سفر میں جب ہانچ میں تھا تو مجھے وہاں پر ہمارا ایک کلاس فیلو تھا ہردیش جی، تو اس کی ٹرانسفر ہو گئی تو اس کو کوئی چارج نہیں پکڑنے لگا، کہنے لگے نہیں آپ ہی کرو کچھ، اب دوست وہیں تو ژٕ رٹ وہیں چارج نہ کرن میں ریلیو ہیڈ ماسٹر کو بتا رہا ریلیو یتس نہ سر چارج کنس دے، میں نے اس کو چارج لے لیا، اس سے چارج لے لیا، لیکن میں دوسرے دن مارننگ اسمبلی میں بچوں کے سامنے گیا، میں نے کہا دیکھو بھائی میری ایز ٹیچر جو ہے وہ ڈیوٹی میں اب وہ نبھا نہیں سکوں گا، کیونکہ مجھے اب یہ آفس انچارج بنا دیا ہے، لہٰذا میری ڈیوٹی اب کچھ اور ہوگی، پڑھاؤں گا میں، لیکن اب میری پرائم ڈیوٹی جو ہے وہ تنخواہ وغیرہ کاغذ وغیرہ وہی بناؤں گا، تو پڑھانے کی ذمہ داری وہ سیکنڈری میری ہوگی۔ اس احساس کے ساتھ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی ینگ ہیں، آپ کا تعلیمی سفر ابھی دور کا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، ایمان، امان عطا کرے، آپ کے کیریئر میں اللہ تعالیٰ ترقی، مزید ترقی آپ کو دے۔ آپ نے دور کا سفر ابھی کرنا ہے، لہذا آپ اسی احساس کو، میں نے ایک وہ لکھا تھا آرٹیکل اس میں اسکول میگزین میں نے کہا تھا کہ گاڈ کانشیسنس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ چیئر آفس میں جو چیئر پر بیٹھا ہے اگر وہ ہمیں نہ بھی دیکھے، لیکن ہم اپنے پیشے کے ساتھ، اپنی اس امانت کے ساتھ، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس امانت میں آپ خیانت نہ کرو، آپ جانتے ہو کہ یہ امانت بڑی نازک ذمہ داری ہے، نازک امانت ہے جو والدین نے ہمارے ذمہ کی ہے، اس امانت کا حق اگر ہم نے ادا کیا تو پھر آپ نے جو آج کچھ اظہار کیا ہے اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا، آپ کے لیے پورا علاقہ امڑ آئے گا، آپ کو اظہار عقیدت کے لیے آپ کو پھول نچھاور کیے جائیں گے، آپ کو وہ مقام عطا ہوگا جس مقام کے لیے ترستے ہیں آج ٹیچرز، جو ٹیچرز کا کبھی مقام ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیئر کو دیکھے بغیر، آفیسرز کو دیکھے بغیر، آپ صرف اللہ تعالیٰ کے اس خوف کو، اللہ تعالیٰ کے اس حاضر ناظر ہونے کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے پیشے سے انصاف کریں گے۔ پیشے سے آپ کا انتخاب جو ہے، یہ انصاف جو ہے، وہ آپ کو ترقیوں کی اعلیٰ ترین منازل تک آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پیشے کے تئیں بڑے سنجیدہ رہیں، اپنے پیشے کو وہ صرف روٹی کپڑا مکان کا ذریعہ ہی نہ سمجھیں۔ حالانکہ ہمیں ایک ہمارا ساتھی کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ چیس دیتا تنخواہ دیون دیتا روپیے دیون کہ کھئی کھئی چھن مکلن جمع تش روزن، لیکن کھئی کھئی تشن مکلن بہت زیادہ ہمیں دیا جاتا ہے، لہذا وہ تو ہمیں ملنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو امانت ہمارے سپرد کی گئی ہے اس امانت کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ کل اس امانت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، آپ کی کنٹریبیوشن کیا تھی، آپ کے ذمہ جو خدمت خلق کا آپ کو جو شعبہ دیا گیا تھا، آپ نے اس میں کتنا حق ادا کیا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر و حمد ثنا پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ جس نے مجھے آپ جیسے ہم سفر ساتھی اور شاگرد ریسٹ اسٹوڈنٹس مجھے عطا کیے، جنہوں نے میرے اس جانے کو بھی بڑا خوبصورت بنایا، ورنہ آج اس کو ونان یہ کہ آج رٹائر گھن پتہ آج لگان کنس کی پنو یہ مکھا ونان دپان کیا کرن یوت یہ دپان ہچ گھن رٹائر تمن پرسن کھانا پتہ نا یم مے سیت محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں میں اس کو ویلکم تمن، لہذا آپ سب کا اللہ تعالیٰ کا شکریہ، پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا، میرے ساتھ ہمارے محترم ساتھی ان کو آپ نے بلایا، ہم بڑی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو اپنے اس شعبے کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے۔ ربنا تقبل منا وجہ شکتیمان ہوا کرتا تھا، اور اس کے لیے ہم بہت ڈیسپریٹ ہوا کرتے تھے کہ ہم اسکول چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ ہلال ان کے فرزند یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا بڑا فرزند
बिलाल, इन दोनों में से एक छोटा था और उसको घर लेने के बहाने, इनके साथ स्कूल हुआ करते थे, हायर सेकेंडरी घाट में तब हाई स्कूल हुआ करता था, तो उनको लेने के बहाने हम चले जाते थे और शक्तिमान देख के आते थे। 2 बजे छुट्टी होती थी। एक बार ऐसा ही हुआ, हम चले गए बेरो मेरे दूसरे साथी, और वहाँ से जब आए, गेम्स पीरियड हमारा था और हमें मालूम हुआ कि इलियास साहब को पता चल गया, और बहुत होशियार थे इस हवाले से, ये लोग गए थे शक्तिमान देखने के लिए। तो फिर उस दिन गालबन आसिफ साहब, आपकी शादी 1998 के आसपास है, 92 नहीं, फिर किसी और की, हाँ, इनकी बहन की शादी थी, इनकी बहन की शादी थी। तो उस डर से, हमारे पड़ोस में रहते हैं, उस डर से सैटरडे और संडे को मैं बाहर नहीं निकला हूं, मैं शादी में भी नहीं जा पाया कि इलियास साहब को पता चल चुका है, मंडे को क्या हाल होगा क्या नहीं। खैर, जब हम मंडे को स्कूल जाते हैं, मॉर्निंग असेंबली होती है, हमें खड़ा किया जाता है और हमारे रुखसार पर वो अपनी उंगलियों के खूबसूरत नकूश भी छोड़ते हैं, हमें याद है, और उस चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार भी हैं आपके। और उसके बाद एक मैच होता है, इखवान से खेलते थे, मैं नॉन स्ट्राइक एंड पर हूं और ये बैटिंग कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त का आलम क्या होता कि मैं अपने रुखसार पर इनकी उंगलियों के खूबसूरत नकूश लिए हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर बैटिंग कर रहा था और ये खेल रहे थे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस वक्त का आलम क्या होता। खैर, हम उसके लिए भी शुक्रगुजार हैं, हम उस चीज़ को भी मिस करते हैं। हम आपकी तालीमी इदारे में जो आपका काम है, आपकी क्लास है, आपका पढ़ाना है, उसको भी मिस करते हैं। आप ख़ास तौर पर इसी चीज़ को, खैर अभी भी ज़िंदगी बाकी है, अभी भी हमारे पास बहुत से सारे मौके हैं कि हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और सीखते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, मैं यहाँ शुक्रिया अदा करने के लिए किसी और ने आना था, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं ही आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी मुकर्रीन हजरात यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बात रखी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम गुलाम कादिर साहब वानी, अब्दुल क़य्यूम साहब शनाली, इमाम जामिया अब्दुल हफीज़ साहब, और हमारी इस आज की पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम इलियास वानी साहब, जिनकी फ़राइज़ मनसबी जो है आज वो तकमील पर पहुंची है, आप सब दोष हो रहे हैं। तो इन अल्फाज से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो हमारे दरमियान जो अभी तक बैठे थे वो अब खड़े हो जाएंगे। आपके सामने आपसे रूबरू कराना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा, वो क्रिकेट का मैदान हो, वो माशरा हो, वो तालीमी इदारे हों, वो मस्जिद हो, वो कोई और जगह हो, हर जगह इनका किरदार नुमायाँ है। बलाए जाँ है गालिब उसकी हर बात, बलाए जाँ है गालिब उसकी हर बात, इशारत क्या अदा क्या। शुक्रिया। मोहतरम इलियास साहब वानी वो हमारे दरमियान आएंगे और आपके रूबरू। शहबाज साहब से व्यूज़ लिए नहीं, बिकॉज़ वी डिड नॉट गेट टाइम देयर। तो अभी हम मोहतरम इलियास साहब के घर की तरफ रवाना हुए हैं। तो शहबाज साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप अपने व्यूज़ शेयर करें।
प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अलविदाई तकरीब में शरीक हुए थे जो मोहतरम व मुकर्रम मोहतरम इलियास अहमद वानी साहब जो मेरे उस्ताद रहे हैं उनके एजाज़ में मुनक्कद की गई थी। मोहतरम इलियास साहब एक बाअखलाक और पुरजोश, पढ़ाने में मुशफ़िक़ और बहुत ही हंसमुख शख्सियत थी। अपने जो हम जब उनसे पढ़ा करते थे उस दौरान हमने उनको ऐसा पाया, बहुत जाँफशानी के साथ, बहुत मेहनत के साथ, बहुत ही हमदर्दी के साथ और मोहब्बत और अफेक्शन के साथ बच्चों को तालीम देते थे। तो मोहतरम अज़हर सर से अब हम इनके व्यूज़ चाहेंगे। वहाँ हरई में इनसे इनका व्यूज़ हमने नहीं लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे वहाँ पर। अभी हम मोहतरम इलियास साहब के घर में हैं, वो यहाँ पर ये हमें अपने व्यूज़ देंगे। प्लीज़ अज़हर सर। शुक्रिया उमर साहब। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। आपका फेसबुक चैनल काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, बड़ी खुशी हुई उसको देख के। उसके अलावा मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने आज की जो पुरवकार तकरीब थी इसकी कवरेज बड़े अच्छे अंदाज में की। तो एक चंद मिसरे आपके लिए कि एक शायर ने कहा है कि शुक्रिया आपके आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया आपके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफ़िल जज्बात अधूरी रहती। जिस खूबसूरती के साथ आपने कवरेज दी इस पूरी तकरीब को, उसके लिए शुक्रगुज़ार हमें आपके। खैर, इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों ने इस बात पर बात की कि ये तकरीब जो थी हमारे मोहतरम उस्ताद मोहम्मद इलियास वानी साहब की रिटायरमेंट सुपरएनुवेशन जो कि 30 जून को है असल में, तो आज हम फुरकानाबाद घाट के उन्हीं के फारिग तहसील तलबा जो हैं और उनके कुछ साथी भी इसमें शामिल थे, हम पेशा साथी, उनके हम असर साथी, उनके दोस्त, वो भी इसमें शामिल थे। और एक छोटी सी तकरीब हमने रखी थी रई के मकाम पर जो बखूबी अंजाम पाई। कुछ चीज़ें आपके इस चैनल, आपके इस फेसबुक पेज की वसातत से भी मैं यहाँ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मोहतरम उस्ताद मोहतरम इलियास साहब वानी का, जिनकी वसातत से, जिनकी कोशिशों से, चाहे वो तालीमी इदारे हों जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, या मुआशरा हो हमारे फुरकानाबाद घाट का, या इसके अलावा तहसील डोडा, ज़िला डोडा में काफ़ी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहे तरबीती कामों में। तो ये आया है हमारे सामने, वाज़ह है, हम इस चीज़ के ज़ामिन हैं। मैंने वहाँ पर भी कहा था कि हम इस चीज़ के ज़ामिन हैं कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। तो मुख्तसर वक्त मैं बस गालिबन ये इनका फ़िराक गोरखपुरी का एक शेर, उनकी एक गज़ल है, तो उनका एक शेर है, ये उनकी नज़र ज़रूर करना चाहूँगा। ये कहते हुए कि
जैसे डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे गरूबियाँ। तो जितना ज़्यादा हो सके जिस चीज़ की कमी हम अपने माशरे में देखते हैं कि हम सब कुछ हैं लेकिन इंसान बनना, आपसे कह रहा था कि इंसान होते हुए हमारा इंसान बनना मुश्किल हो गया है। तो जो खिदमात इलियास साहब की हमारे माशरे में हैं, चाहे तालीमी इदारों में दी हैं खिदमात, या हमारे माशरे में हम उसके ज़ामिन हैं। मैंने कहा आपसे, मेरे पड़ोसी भी हैं तो खूब वाकिफ़ हूँ उनकी ज़ात से। तो आखिर में बस फ़िराक गोरखपुरी का एक शेर उनकी नज़र ज़रूर करना चाहूँगा। कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठा, कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठा, किए बला किए बला किए बला किए बला किए बला भी तेरे आशिकों के सर आई, कि ये बला भी तेरे आशिकों के सर आई, कहाँ हर एक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।